Good morning, dear students. How are you all? My name is Ritesh Chandekar, and welcome back to my channel, The Achievers Education. Before we begin with today's topic, I would want you all to subscribe to my channel, The Achievers Education, right away so that you do not miss out any of the latest updates which are going to come on my channel. So let us begin with today's chapter. Today's chapter is a new chapter, and the name of the chapter is Federalism. As you can see, part 1 of political science, class 10th. And the meaning today with the topics which we are going to cover here is the meaning of federalism. So let us begin. What is the meaning of federalism? Yes. So as we have studied democracy also for quite a long period of time, we have studied about monarchical form of government for a quite long period of time. We have also studied about dictatorship, okay, for a quite period of time. So you see, जब हमने इन सारे अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा, ओके, एंड व्हेन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी, हम लोगों ने एक और पार्ट थोड़ा सा जो डिटेल में पढ़ना चाहिए था वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ओके, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट called as federalism. दरअसल actually federalism is basically an inseparable part of democracy. Okay, we can see that wherever there is democracy there should be federalism. Okay, so yeah, we have to understand in that manner that we have to study one more concept which is basically a part and parcel of the democracy, and therefore we have to study this particular topic. So let us begin. What is the meaning of federalism? Federalism दरअसल होता क्या है? Let us see. So federalism is a system of government where the power of the government is divided into the central and the state and its subunits. देखिए मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन दी है, दोनों के दोनों सही है. एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है और एक मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ. ओके, there are two definitions which I have been giving. Whichever you are comfortable with is going to be correct for you, and you can just go ahead with that. So it is very simple. क्या होता है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये एक प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर जो है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके सब यूनिट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं. पावर का हम लोग डिवीजन करते हैं. कौन से जगहों पे? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और उसके सब यूनिट्स लेवल पे. ओके, सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन व्हाट इट सेज, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. सो ये होता है फेडरलिज्म. ये एक प्रकार का सिस्टम है सरकार चलाने का और गवर्नमेंट रन आउट करने का. ओके, सो जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर जो है हम किसी एक कंट्री के पास में नहीं रखते हैं और एक गवर्नमेंट के पास में नहीं रखते हैं. इनफैक्ट हम लोग उस पावर को बांटते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फेडरलिज्म. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ एज यू कैन सी इन द चार्ट हियर, सी सेंट्रल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा हो गया? ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट है. एंड उसके अंडर में कौन से गवर्नमेंट आते हैं? फिर स्टेट गवर्नमेंट आएगा अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर में भी लोकल गवर्नमेंट्स आएंगे अपने अपने स्टेट्स के अंदर. सो इसे बोलते हैं सेंट्रल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. चलो आगे बढ़े. Next thing, now that we have understood the meaning of federalism, we also need to know the features of the federalism, which is very very important. So let us begin with that. First one, there are two or more levels of the government. Okay, levels को हम tiers भी बोलते हैं. Okay, there are two or more levels of the government. Obviously we can see it here that one level is the union government, second level is state government and third level is the local government. और local government के अंतर्गत में भी cities में municipality आती है. Okay, municipal corporation, municipal council, नगर पंचायत, और similarly villages में अगर देखा जाए तो we have district पंचायत, intermediate पंचायत, और या फिर कैन से तालुका लेवल पे पंचायत समिति, और एंड देन द विलेज पंचायत जो कि ग्राम पंचायत है, isn't it? So all of this, see, there are more than two levels of governments are there which are running here, isn't it? So this is the very first feature, that there are two or more levels of the government. Great, let's move forward to the next feature. Second feature is that different tiers of government, different types of government, tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration.
देखिए वेरी सिंपल थिंग, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इजीली, ओके, जस्ट पे अटेंशन। क्या बोला है उसने, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल्स के जो गवर्नमेंट है, दे गवर्न द सेम सिटीजन, वो सिर्फ वो सेम सिटीजन्स को, मतलब एक ही, मतलब सेम ही पर्सन को गवर्न करते हैं, बट each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं, ओके, मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ, ओके, राइट, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, राइट, सो महाराष्ट्र की बॉर्डर कहाँ तक होंगी, महाराष्ट्र की जो भी सीमाएं बनी हुई है वहां तक ही है, ओके। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट सी I'm living in India, okay, in which there is a state called as Maharashtra, okay, in which there is a district called as Chandrapur, and in that district there is a city called as Chandrapur city, where I am where I am living, right? So you need to understand this thing, that I am a citizen of Chandrapur district, right? At the same time, same person is a citizen of Maharashtra also, same person is a citizen of the entire India also, right? तो वही बोलने का मतलब है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, दे गवर्न द सेम सिटीजन, इजंट इट? अभी आपको शायद समझ में आ गया है, ओके। बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम नाउ, एज आई सेड, आई एम नाउ लिविंग इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके, सो यहाँ के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी फैसिलिटीज मिलने वाली है, तो मुझे सिर्फ उन लोगों को मिलने वाली है जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, isn't it? So for example, I am living in Chandrapur district, so I will be getting facilities only under the area which is there under the control of Chandrapur district, isn't it? तो मुझे यहाँ की फैसिलिटीज वही मिलेगी। साथ ही साथ में अगर मुझे किसी प्रकार का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मुझे ये डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। Similarly, for example, I am living in Maharashtra state also. If there are any kind of rules and regulations which are coming or imposed, okay, और किसी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रूल आता है महाराष्ट्र के लिए कि फॉर एग्जांपल एंटी स्पिटिंग लॉ, ओके, कि कोई भी महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी थूकेगा नहीं रोडों पे, ओके। सो now this law which is made, that is made for the entire Maharashtra only, isn't it? And therefore ये law के therefore it will be applicable to only the people of Maharashtra। इसका मतलब क्या है कि मैं जो पर्सन हूँ जो महाराष्ट्र में रहता है, मुझे ये जो लॉ है ये कब तक लागू है, जब तक मैं महाराष्ट्र में हूँ। जैसे मैं बाहर में गया तो वो वहां पे तो वो लॉ फिलहाल तो लागू किया नहीं गया है, so that I will not be binded with that law when I go to MP or Kerala or anywhere like that way, isn't it? Okay, and taxation also, मैं for example I am living in this country, okay, and if I have to pay any kind of taxes, okay, so मुझे वो पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये कंट्री में रह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूयॉर्क में गया या फिर अमेरिका में गया, सॉरी न्यूयॉर्क गया या फिर इंग्लैंड गया, ओके, सो डू आई हैव टू पे टैक्स देयर? नहीं, मुझे यहाँ के प्रॉपर्टी का उधर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यहाँ के प्रॉपर्टी का टैक्स मुझे यहीं पे भरना पड़ेगा, isn't it? If I purchase a property there, then I have to pay tax there, isn't it? So ये है, okay, it is governing the same citizens but it has its own jurisdiction। ये जो तीनों प्रकार के जो गवर्नमेंट है उनका अपना अपना एक एरिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट का उसका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का ही उसका एरिया कवर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ वो अपने स्टेट में ही काम कर सकती है, एंड एट द नेशनल लेवल सिर्फ अपने कंट्री में काम कर सकती है, बाकी किसी और कंट्री में काम नहीं कर सकती, isn't it? So that is what the thing is। इसका मतलब ये फीचर का मतलब ये हुआ, ओके। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फीचर, थर्ड, ओके, व्हाट इट सेज, just let me check, okay, the jurisdiction of the respective level tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। और क्या बोलता है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे मैंने बोला कि ये अपना अपना एरिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एरिया तक, स्टेट लेवल का सिर्फ अपना अपना स्टेट बॉर्डर तक, ओके, एंटायर नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल पे अपना कंट्री बॉर्डर तक, ओके। व्हाट इट इज सेइंग, द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स of tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि हमको स्टेट गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, हमको लोकल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, एंड देयरफॉर नन ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू वरी, है ना, एनी ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये प्रकार की गवर्नमेंट किसी दिन बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो इट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, isn't it? Next thing, now
Fourth, okay, the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of the government. Okay, let's say for a now what are the fundamental provisions which are mentioned in the constitution? Fundamental provisions का मतलब होता है सारे के सारे fundamental rights हमारे, okay, right to education, right to equality, right to freedom, right to speech. वो क्या बोलता है कि ये सारे जो basic provisions है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकती, मतलब जब उनके मर्जी में आया वो इमीडिएटली सिर्फ खुद के कंसेंट से चेंज नहीं कर सकती, उनको सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है अलग अलग स्टेट्स के उन सभी का कंसर्न लेना पड़ेगा, ओके, और मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ लोगों से उसको पास करवाना पड़ेगा और उसके बाद में ही वो ऐसे प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व शिक्षा अभियान जो है राइट टू एजुकेशन ये पसंद नहीं आ रहा है और वो सोचते हैं कि हम राइट टू एजुकेशन सभी को नहीं देंगे, सिर्फ ब्राह्मण्स को देंगे. सो ऐसे बोलने से होने वाला है क्या? नो, नॉट एट ऑल. यू हैव टू टेक द कंसर्न ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट. ओके, सारे के सारे स्टेट्स का आपको कंसर्न लेना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप ये फंडामेंटल प्रोविजंस चेंज कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली. नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड. ओके, नाउ courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. Okay, now the highest court acts as an umpire if disputes arises between the levels of government in the exercise of their respective powers. क्या बोलता है? Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास में अधिकार है कि जो सारे लॉज, जो सारे फंडामेंटल लॉज जो लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके पास अधिकार है कि वो उनको फिर से पढ़ सकते हैं और फिर से उनमें कुछ बदलाव ला सकते हैं अगर जरूरत है तो. ओके, इफ देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग सम चेंजेस, इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट, रीइंटरप्रेट वंस अगेन, ओके, and change and make changes in the law. Okay, and in this the highest court acts as an umpire if dispute arises between the different levels of government in the exercise of their respective powers. Okay, now let's say for example जो ये जो छोटे अपने levels of the government है, okay, central level of government, state level of government and local level of government, अगर इन तीनों के बीच में आपस में अगर कोई झगड़ा होता है, so who will be the highest court of who will be making decision? सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होगा जो डिसीजन मेकिंग करेगा? वो है सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है. सो देयरफॉर हाईएस्ट कोर्ट जो है दैट विल एक्ट एज एन एम्पायर. ओके, वो डिसीजन लेगा और जो भी डिसीजन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट विल बी फुल एंड द फाइनल डिसीजन, इजंट इट? सो हमको ऐसा वो चीज करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स में ही अगर झगड़ा होने लगे तो फिर कौन न्याय करेगा. ओके, द न्याय और द जस्टिस विल बी डन obviously by the Supreme Court of India. So that is also, this is also one of the provisions which is mentioned in the constitution of, okay, and that is what makes our country a federal country. Okay, yes. Then next thing, sources of revenue of each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy, right? So इसका मतलब क्या है कि ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट भी है. नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये सारे गवर्नमेंट्स जो है ये कहां से कमाएंगे, राइट? सी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट ओवर द एंटायर इंडिया. Similarly, state government of any state, Maharashtra, okay, he has the right only over the Maharashtra, right? So constitution ने specifically mention करके रखा है उनका अपना एरिया और अपने sources of revenue कि आप ये sources of revenue से कमाएंगे और आपका jurisdiction जो है, आपका जो area of जो control है, ये आपका particularly area of control रहेगा और इसमें से जितना भी revenue आता है वो सिर्फ आपका होगा. ओके, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं कि आप ये डिपार्टमेंट से आप कमाएंगे. ओके, ये डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहेगा और यही डिपार्टमेंट से आप कमाएंगे और जो भी लोगों के भले के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आप जो खर्चा लगाना चाहते हैं, यू कैन यूज दैट मनी फॉर दैट. ओके, सो यही बोलता है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. मतलब पैसे पानी से भी आप हर एक गवर्नमेंट जो है स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए. सो उसके लिए क्या किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि ये सोर्सेस से आप रेवेन्यू कमाएंगे. देयर आर 4 लिस्ट है, 4 प्रकार की लिस्ट बना के रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे और वो लिस्ट में लिखा हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट कौन से गवर्नमेंट को दिया हुआ है. ओके,
Let us move forward. So, and the last feature which is here is that the federal system thus has a dual objectives to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate the regional diversity. क्या बोलता है इसका मतलब क्या हुआ? फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स है, ओके, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ओके, जिसके लिए फेडरलिज्म बनाया जाता है. व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन, टू